welcome. You're watching the News Hour Agenda, India's most loved primetime show at 10. I'm Padmaja Joshi. Today, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal exploded a Lakshmi bomb just a few days after Diwali. In what came really as a bolt from the blue, he demanded that the centre put the pictures of Goddess Lakshmi and Lord Ganesh on fresh currency notes that will be printed henceforth. So what was the logic offered for this demand? The logic was twofold. One, that if something similar is done in Indonesia, where they have a picture of Lord Ganesh on their currency notes, why shouldn't it be done in India? Second, that this move will bring us the Almighty's blessings to settle the economic condition in the country. हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है, तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। Now, while ostensibly this bhakti emanates from a desire to revive the economy, the real reasons could lie elsewhere. The Aam Aadmi Party has come in for flack lately over the utterances of several of its leaders, from Rajendra Pal Gautam, who was made to resign after a video of him emerged taking oath to never worship the gods Brahma, Vishnu and Mahesh, to Gujarat Aam Aadmi Party chief Gopal Italia's old videos where he was heard saying that women should avoid temples and kathas because these are dens of exploitation. Even Mr. Kejriwal and his deputy Manish Sisodia invited controversy in the past vis-a-vis Hindu beliefs. In the thick of the Ram Mandir debate, Manish Sisodia had advocated building a university instead of a Ram temple in Ayodhya. Arvind Kejriwal gained notoriety for a joke, in fact a meme he had tweeted about a man with a broom chasing a swastik. Today, however, all the leaders of the Aam Aadmi Party were earnest, in fact aggressive, in their bhakti of Lakshmi Ganesh. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हाथ जोड़कर उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का प्रस्ताव नहीं है, ये भारत के 130 करोड़ लोगों का प्रस्ताव है। इस देश के 130 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो भारत के नोटों पर छपे। मुझे हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की करेंसी पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरें लगाने का विरोध कर रही है। मुझे बहुत आश्चर्य है। भाजपा वालों को देश की आवाज़ समझनी चाहिए, देश की आस्था समझनी चाहिए। देश की आस्था के साथ में इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मैं कुछ देख रहा हूं कि बीजेपी के नेता बहुत विरोध कर रहे हैं इसका। बीजेपी पता नहीं क्यों विरोध करने पे उतर आई है इसका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से टीवी पर आकर इस बात का पूरा विरोध कर रहे हैं कि देश के नोटों के ऊपर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश की तस्वीर कैसे लग सकती है। उनका विरोध अरविंद केजरीवाल से हो सकता है, आम आदमी पार्टी से हो सकता है, मगर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगवान गणेश और मां लक्ष्मी से भी इतनी नफरत हो गई कि वो इतना विरोध कर रहे हैं। But not too many were amused. For a change, the BJP and Congress actually united to attack Arvind Kejriwal, while the BJP called him a Chunavi Hindu trying to appear holier than thou, quite literally, with elections in sight. The Congress asked, why just Hindu gods? Why not put symbols of Islam, Christianity, Sikhism and the Jain faith on currency notes? In 2016, Modi ji had insulted Ma Lakshmi by saying that this prasad is of no value, because he had said that 500 rupees and 1000 rupees note are of no value. From that point onwards till this time, our GDP had not grown. GDP is consistently falling because Modi ji had insulted Ma Lakshmi. So first of all, Modi ji and his small packet, Arvind. जो व्यक्ति भगवान राम को गाली देता हो,
दिलवाता हो अपनी पार्टी से, इसका मतलब देता ही है ना। अभी भी भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, अब बताओ कि विष्णु को नहीं मानेंगे और फिर चुनाव में लक्ष्मी जी की बात करेंगे, तो ये असल में इनका पूरा ध्येय दूसरी तरह से लक्ष्मी जी का है। सरकार बन गई, लूटो। इनका कहीं भी सम्मान मां लक्ष्मी के लिए है ही नहीं। दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है, पहले वहां से काहे नहीं शुरुआत करते हैं। सरकारी लेटर हेडों पर श्री गणेश भगवान और लक्ष्मी माता जी की तस्वीर लगाई, कौन मना कर रहा है। लेकिन केवल राजनीति करनी है। अब गुजरात और हिमाचल में चुनाव है तो हिंदुत्व इनको याद आया है। अरविंद केजरीवाल जी श्री गणेश भगवान और माता लक्ष्मी हमारे हिंदुस्तानियों के हृदय में बसते हैं, हमारे दिल में बसते हैं। उनके नाम पर राजनीति मत करिए। All of the politics aside, the real question though is, what is the reason behind this sudden move? Does anyone really think that this bizarre bhakti is going to improve the economy or even get the Aam Aadmi Party Hindu votes? Is this a desperate attempt to try and shift focus or deflect focus from the unseemly controversies in the recent past where Mr. Kejriwal and his party have been branded anti-Hindu, or this is a bold gamble to try and grab the narrative by its horns and completely change it? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us on the debate, Tajinder Bagga, leader of the BJP, Tushar Gupta, senior editor of Swaraj, advocate Abhishek Sudhir, political analyst, also Parvinder Singh Sethi and Akhil Khan, all political analysts. I want to actually start with you, Mr. Abhishek Sudhir. Are you seriously saying that putting the pictures of goddess Lakshmi and Ganesh on currency notes is going to improve the economy? Yes. So you're saying a chief minister who's been an Indian Revenue Services officer who has gone to the IIT is telling us that economy सुधारने के लिए लक्ष्मी गणेश की फोटो लगानी है. So why do we do a Lakshmi Puja? Why do we do a Ganesh Ji ki Puja? Why do we do it every Diwali? Why do we do it? We do it for education, wealth and prosperity. That is core to our Hindu belief. And if Mr. Kejriwal is saying that you put a photo of Lakshmi Ji on the note and maybe the economy will finally revive, that is a constructive suggestion. Why is the BJP against this suggestion? You can be against Mr. So just out of curiosity, IRS सर्विस में टैक्स कलेक्शन जब कम होता था तो क्या लक्ष्मी गणेश जी को फाइल में लगा देते थे कि अब टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा? अच्छा, so this shows the contempt you have for our gods and goddesses. Why I have absolutely no contempt, sir. Why this Hindu phobia? But the work of government and personal belief. So, why are you belittling? Why are you belittling Ganesh Ji? I am not actually. Why are you belittling Ganesh Ji and Lakshmi Ji? Are you saying Ganesh Ji does not have the power to give us wealth? Are you saying Lakshmi Ji does not have the power to, give us education, or the vice versa? Ganesh Ji gives us education, Lakshmi Ji gives us wealth. And hey, education is wealth, knowledge is power. So both Ganesh Ji and Lakshmi Ji are interlinked. And when a Muslim majority country, the world's largest Muslim country, can honor Ganesh Ji by putting their faces on the notes, why can't we? Actually, here's a quick fact check. Abhishek Sudhir जी, पहली बात तो इंडोनेशिया के सिर्फ 20,000 रुपये के नोट पर गणेश जी की फोटो है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, 2020 में इंडिया सर्वाइव द कोविड क्राइसिस. डू यू नो दैट इंडोनेशिया वेंट इनटू रिसेशन? कोविड के बीचों बीच इंडोनेशिया सफर्ड रिसेशन. I am not blaming. I am just saying कि आपका जो सोल्यूशन है थोड़ा सा इल रिसर्च्ड है. आपका सोल्यूशन थोड़ा सा इल रिसर्च्ड है. अगर आप कह रहे हैं कि गणेश जी से इकोनॉमिक रिवाइवल होगा तो थोड़ा सा इल रिसर्च्ड है. ओह वरे भाई, आप क्या ओवैसी के पार्टी से है क्या? आप क्या बोल रहे हैं? You are saying Ganesh Ji is responsible for the recession in Indonesia? I am not. Really? But I am saying कि अगर आपका सोल्यूशन है कि गणेश जी की फोटो लगाइए
तो फिर इंडोनेशिया में रिसेशन क्यों हुआ अभिषेक जी? तो आप कह रहे हैं कि गणेश जी की पूजा हमें नहीं करना चाहिए. यू आर सेइंग मैं तो ये कदापि नहीं कह रही हूँ. मैं तो कह रही हूँ आपको बिल्कुल करना चाहिए, रोज रोज करना चाहिए. आप चाहें तो झाड़ू का अपना सिंबल बदल के आप गणेश जी का सिंबल बना लीजिए. No, I take strong exception to the debate itself. You using the words Lakshmi bomb. Are you reducing our beloved Mata Lakshmi to a bomb? सर ये बताइए आपको अगर लक्ष्मी जी की, you know, this is going in so many different directions. I have to say I am mildly amused, bemused and a little bewildered because I seriously did not think we would sit on TV and have this debate. आपको लक्ष्मी जी की इतनी चिंता है, वैसे आपने दिवाली पे पूरे पटाखे बैन कर दिए, पर चलिए let's leave that aside for another day. आपने दिवाली पे कहा कि भाई पटाखे मत जलाओ, ग्रीन पटाखे भी मत जलाओ. आज आप कह रहे हैं कि how dare you. चलिए कोई बात नहीं. क्या आप हिंदू विरोधी हैं तेजिंदर बग्गा? आप हिंदू विरोधी हैं, आप लक्ष्मी जी की फोटो क्यों नहीं लगाना चाहते? देखिए पद्मजा, ऐसा है कि दिवाली से 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी की जो मंत्री है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि दिवाली के ऊपर हम फायर क्रेकर्स पे बैन लगा रहे हैं और उसमें ये कहते हैं कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी हिंदू अगर पटाखे जलाएगा तो उसको हम 6 महीने के लिए जेल में भेज देंगे. उसके बाद ऐसा हुआ कि दिल्ली के हिंदुओं ने उनको करारा जवाब दिया और दिवाली पे उनको बता दिया कि अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरे को एक्सपोज कर दिया. अरविंद केजरीवाल कल जितने भी कार्यक्रमों में गए, लोग कह रहे थे देखो दिल्ली का औरंगजेब आ गया, दिल्ली का औरंगजेब आ गया. अब अरविंद केजरीवाल बड़ी दुविधा में कि गुजरात का चुनाव पास है और उनका हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ चुका है. और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये पहली बार ऐसे नहीं हुआ. केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा पहले भी सामने आता रहा है. दिवाली के ऊपर पटाखों पे बैन लगाया, दशहरे में रावण से पटाखे उतरवाए, छठ पूजा पे ये कहा कि यमुना पूजा में छठ की पूजा नहीं होने देंगे, दुर्गा पूजा पे कहा कि दुर्गा पूजा विसर्जन नहीं होने देंगे यमुना में. टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो गए. बाटला हाउस इनकाउंटर को फर्जी बोला, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल पूछे, राम मंदिर में बोला कि राम मंदिर नहीं बनेगा अयोध्या में, तारिक हुसैन को डिफेंड किया, कश्मीर को पाकिस्तान को देने वाले प्रशांत भूषण से 1 करोड़ रुपए देके पार्टी का फंड शुरू किया. फोटो डालोगे या नहीं? राम और लक्ष्मण को गाली देने वाले आज भी उनके पार्टी के अंदर सदस्य हैं. गोपाल टेलिया जो गुजरात के अंदर उनके अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं लक्ष्मी जी की फोटो डालोगे या नहीं डालोगे? बोला जवाब दो. हिंदुओं की कहानी है, लक्ष्मी जी का फोटो डालोगे या नहीं डालोगे? कहानी बनाई. केजरीवाल का इतिहास हिंदू विरोधी है. केजरीवाल का इतिहास हिंदू विरोधी है. लक्ष्मी जी की फोटो डालोगे या नहीं डालोगे? तेजिंदर बग्गा, आपसे सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि आप लक्ष्मी जी की फोटो क्यों नहीं लगाना चाहते, गणेश जी की फोटो क्यों नहीं लगाना चाहते? वो कह रहे हैं इधर उधर की बात मत करो. अभी अगर आपने ये सजेशन दिया होता, आप इसको मास्टर स्ट्रोक बोलते. अब आम आदमी पार्टी कह रही है तो आप उसको डिसमिस कर रहे हैं. आज ये इसलिए उसको डिफेंड करने के लिए, उस छवि को तोड़ने के लिए कर रहे हैं. तेजिंदर बग्गा, आपसे फिर से पॉइंटेड सवाल पूछ रहे हैं कि आप लक्ष्मी जी की फोटो क्यों नहीं लगाना चाहते? लगाइए, आपको चैलेंज दे रहे हैं. फोटो लगाइए, कोई आपको जेल में नहीं डालेंगे. हरियाणा की पुलिस आपको देखिए वो ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी डिसाइड करना, सरकार डिसाइड करेगी. लेकिन जो आज देखिए हमने ये भी देख रहा है कि कोई अपमान नहीं होना चाहिए. ये क्या गारंटी लेते हैं कि जिस नोट के ऊपर लक्ष्मी जी की फोटो होगी वो किसी मांस की दुकान में नहीं जाएगी, वो किसी मदिरा की दुकान में नहीं जाएगी, वो किसी आतंकवादी के हाथ में नहीं जाएगी, वो ताहिर हुसैन जैसे आतंकवादी के हाथ में नहीं जाएगी, वो मनीष सिसोदिया जैसे शराब के दलाल के हाथ में नहीं जाएगी. क्या किसी मास्क वाले के पास में नहीं जाएगी? तो क्या अगर वो जाएगी वो बाथरूम टॉयलेट के अंदर, पर्स के अंदर नहीं जाएगी, वो लेदर पर्स के अंदर नहीं जाएगी? अगर ये गारंटी लेते हैं तो बिल्कुल सरकार सामने को तैयार हो जाएगी. फोटो डालोगे या नहीं डालोगे? गणेश जी की फोटो पर्स में नहीं रखी जाती, लेदर के पर्स में. आप उसको लेदर के पर्स में रखना चाहते हो? आप लेदर के पर्स में उसको रखना चाहते हो? आप उसको लेदर के पर्स में रखना चाहते हो? आप चाहते हो नहीं डालोगे ना की फोटो? आप इसकी गारंटी ले लीजिए, छप जाए. तू एक काम, आप इसकी गारंटी ले लीजिए. मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसकी गारंटी ले लीजिए. ओके, अभिषेक सुधीर, while you know there may be quips at each other, you may take digs at each other, but ये तू तड़ाक मत कीजिए. This is not that show, this is not that channel. तू This is not the way to speak to each other. Please, let's maintain civility. We are all civilized people here. And the country is watching you on a national TV channel, which is not a circus. He has said the nastiest
He is saying the nastiest things about Arvind Kejriwal, this man. Like? He disrespects the elected chief minister of Delhi, and you want me to respect somebody who does not respect my God and my goddess? He does not respect my religion. Why should I respect him? आप बताइए, एक भी चीज झूठ He बोली does हो। not respect my क्या उन्होंने religion. नहीं Why should I टुकड़े respect के him? साथ खड़े हुए? क्या उन्होंने कश्मीर तुम भारत को काम करो, टुकड़े करने वालों के साथ इंडोनेशिया नहीं खड़े हुए? क्या उन्होंने तुम राम जाओ मंदिर का इंडोनेशिया। विरोध नहीं किया था? बोला था राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। Okay, you know, since we are going down this lane, let me ask you, let me play that picture again. You know, it is all very well to sit here and make some farcical argument saying कि तुम यहाँ पे बनाओगे लक्ष्मी जी की फोटो की नहीं बनाओगे अभिषेक सुधीर. What was the idea behind tweeting that meme where a man with a jhadu is chasing a swastik? Now anyone knows कि जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, since you were so emphatically, vehemently and emotionally talking about कि हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं, जब भी हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दिवाली पे तो साथ में उसके स्वास्तिक बनाते हैं. आप तो झाड़ू से स्वास्तिक को चेज कर रहे थे. टुडे यू आर द बिगेस्ट रहनुमा कि भाई लक्ष्मी जी की फोटो लगा दो आफ्टर मॉकिंग द स्वास्तिक. व्हाई? आप इंसल्ट नहीं कर रहे थे? अच्छा, ओके. आप you're confusing the issue, ना? Yeah, let me ask you a simple question. क्यों भाई? You can लक्ष्मी, hate Kejriwal. गणेश और स्वास्तिक You are can call inseparable. Kejriwal names. You can say, अरे, किसी भी अरे, पूजा घर में लक्ष्मी जी के सामने hear me out, स्वास्तिक hear me बनता out. है. ये तो बच्चा भी जानता है. Hear me out, Padmaja. ठीक है, Padmaja, you hate Kejriwal. You think I Kejriwal is doing don't this for hate whatever Kejriwal reason. at all. Fine. But More then- power to him, that's- but at least let's talk on facts, sir. Arey, come on, Padmaja. Let's talk on facts. The Yeah. fact is this: Mr. Kejriwal has made a constructive suggestion. Instead of beating the bush, Tejinder Bagga, whatever his name is, should tell us: will you put the photo of Ganesh ji or Lakshmi ji? If you won't put it, tell us why you won't put it. And if he doesn't want to put it, he should go to Pakistan, because that's where he belongs. If he does not respect Lakshmi ji and Ganesh ji. Oh my God. Okay, Tejinder Bagga, Pakistan. जाओ पाकिस्तान जाओ. पाकिस्तान की पुलिस तुम्हें लेके जाएंगे. देखिए, पाकिस्तान की पुलिस पंजाब आके तुम्हें लेके जाएंगे. जाओ, बचा लेंगे तुमको. अच्छा, जाओ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं. देखिए, ऐसा है, मैंने इनको सिर्फ एक चीज बोली, जवाब दो. ये यहाँ पे गारंटी ले ले कि जो लक्ष्मी जी का नोट होगा वो किसी मांस की दुकान में, शराब की दुकान में, आतंकवादी के हाथ, किसी चमड़े के पर्स में नहीं जाएगा. सरकार नोट छाप देगी. आज कुछ धर्म गुरुओं ने ऐसा कहा है, ये मैंने नहीं कहा, ये किसी धर्म गुरुओं ने ऐसा कहा है कि अगर ये ऐसे नोट छपते हैं तो उसे अपमान होगा, क्योंकि वो मांस की दुकान में भी जाएंगे, शराब की दुकान में भी जाएंगे, लोग नोट उड़ाते भी है, शराब घर में भी जाते हैं, तो इस तरह के उसका अपमान नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है ये इसको आप हाँ या ना में फैसला नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको कह रहा हूं इसकी गारंटी ले ले, सरकार छाप देगी. अकील खान, आप क्या ये गारंटी लेते हैं कि वो मास्क अकील खान, आप गारंटी लेते हैं चमड़े कि के इंसल्ट नहीं होगा? टॉयलेट के अंदर लोग लेके नहीं जाएंगे. अकील खान, आप गारंटी लेते हैं? ओके 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 देखो पद्मजा, लक्ष्मी जी इज द सिनोनिम्स ऑफ आवर वेल्थ. That is the fact of life, and Arvind ji has told all these things, keeping in view this perception and this concept that Lakshmi ji is the synonym to wealth. That's why the synonym to wealth means money. Money, if we see, it's a psychology, it's a human psychology. If we are seeing Lakshmi ji regularly on our notes, then it will give a psychological impact. It will have a psychological impact to all of us that okay, we should do hard work for earning money and do best for the country to be prosperous. And one more thing I would like to say, that if this would have been told by Modi ji, then it would have been praised by all Modi, all the people of BJP like anything. You see, Modi ji करे तो पुण्य और आप करे तो पाप. What is this nonsense? अच्छा, तो बेसिकली ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं मोदी जी को कि कल को मोदी जी ना कर ले, कूद के हम पहले डिमांड कर ले कि भाई आप लक्ष्मी और गणेश जी को वहां पे डाल दें. आपको क्या प्रॉब्लम है तुषार गुप्ता? देखिए, अकील खान कह रहे हैं कि वो जब भी लक्ष्मी गणेश को देखते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं. वो कहते हैं मैं और मेहनत करूंगा, मैं और पैसे कमाऊंगा और प्रॉस्पेरिटी आएगी. इट इज मोटिवेशनल. दिन दुगुना रात चुगुना. Modi ji, So on a lighter note, before you respond, तुषार गुप्ता, अकील खान जी ये बताइए कि आम आदमी पार्टी का सिंबल चेंज कर दीजिए ना, लक्ष्मी जी को सिंबल में डाल दीजिए.
कि आम आदमी पार्टी का सिंबल ही लक्ष्मी गणेश है। Why not Modi ji change your symbol? Why not change the party symbol? Why not? Because Modi Change ji the is the party more symbol. concerned about Prosperity all ki these things, prosperity all और this hard work का showbazi hard work. Modi is doing. But Arvind ji is doing the very right direction. It's a psychological impact on every Indian, including Hindu, Muslim, Sikh, Isai, everybody. Because the money इतना इम्पैक्ट तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इतने साल हो गए पूजा करते हुए लक्ष्मी गणेश की, पर अभी इकोनॉमिक इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, साइकोसोशल इम्पैक्ट, सारा इम्पैक्ट हो रहा है। तुषार गुप्ता, so much impact. Impact ही impact. A lot of Padmaja. Tushar Gupta, go on. Let Tushar Gupta Mr. speak. Khan, Yes. Akil Khan, wait, Mr. Khan, yes. You know, Padmaja, here is the thing. I've been listening patiently, and let's talk on actual facts here. The one problematic statement coming from the Aam Aadmi Party is they've confused prosperity and wealth, which is denoted by goddess Lakshmi, for currency. That denotes their very primitive thinking when it comes to money. Of course, I don't expect them to understand much, because for them revenue is equal to more liquor stores. So I don't expect them to understand wealth and prosperity in context of goddess Lakshmi and Ganesha. But at the end of the day, you have to understand, Kejriwal is suggesting that goddess Lakshmi on currency notes will improve the economy. Even if I were to agree with his suggestion, I do not agree with the premise in which he is making it. That's the problem. Number two, I have been saying this since 2013. I'll say it on your show today, Padmaja. Arvind Kejriwal's politics thrives on the incapability and incapacity of his supporters and voters to understand real world problems and the real world solutions to them, of which Abhishek Sudhir is an example. Of course, he wouldn't understand the swastik mean, because then he was a Samajwadi spokesperson and hoping that they would get 300 seats. Nevertheless, Padmaja, here is the problem. Wealth and prosperity doesn't mean currency notes. Wealth and prosperity can also mean good health, good luck, a lot of good other things, but it doesn't bound down to currency notes. And even if I were to say, like Arvind Kejriwal is making a sensible suggestion, we should think about it. The problem is, his idea is that ये करने से इकोनॉमी सुधर जाएगी. आप मुझे बताइए पद्मजा, फिर तो रिजर्व बैंक का क्या काम है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या काम है? हम तो ऐसी बेवकूफ है कि फेड के इंटरेस्ट रेट को देखते हैं. हमें तो करेंसी नोट पे गणेश लक्ष्मी जी लगा देने चाहिए. इन्फ्लेशन का भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, महंगाई भी दूर हो जाएगी, आपकी फॉरेक्स एक्सचेंज भी सुधर जाएगी, करेंसी एक्सचेंज भी सुधर जाएगी. कल गणेश जी लक्ष्मी जी की तस्वीर हम करेंसी नोट पर लगाते हैं, डॉलर टू रूपी विल बिकम 40. आम आदमी पार्टी के सजेशंस प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, उनके बिहाइंड जो थिंकिंग होती है ना, वो प्रॉब्लमेटिक होती है. आपसे एक्चुअली एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल मैं पूछना चाहती हूं कि अगर सच में गणेश लक्ष्मी जी की फोटो लगा करके प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सबसे पहले तो आपको कम से कम पंजाब में अपना सिंबल चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट आई चेक्ड द आउटस्टैंडिंग debt of our government in Punjab is at 2.63 lakh crore rupees, which is 45.88% of the GDP. सबसे ज्यादा स्टेट जो कि डेट में है वो कि पंजाब का है, जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है. आपको तो फौरन से वहां का अपना लोगो चेंज कर लेना चाहिए, सिंबल चेंज कर लेना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी. परविंदर सेठी जी, देखिए आपने इन बातों का ना मजाक बना दिया है. ये जो इशू है इसका मजाक बना दिया है. सिंबल हमेशा इलेक्शन कमीशन देता है, पहली बात. दूसरी बात ये है, ये एक ऐसी पार्टी है जो मुद्दों के ऊपर काम करती है, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, रोजगार के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, पानी के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर. उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने दिवाली पे एक सजेशन दिया और एक रिक्वेस्ट लेटर भेजने की बात कही प्रधानमंत्री कि अगर हम नोट के ऊपर महालक्ष्मी और गणेश जी की फोटो छापेंगे तो हमें ब्लेसिंग मिलेगी. और ब्लेसिंग से देखिए काम तो रोजगार से होता है, लेकिन भगवान की ब्लेसिंग भी कोई चीज करती है. दूसरी बात में आपकी बात, आप बार स्क्रीन पर राजेंद्र गुप्ता का दिखा रहे हैं कि राजेंद्र गुप्ता ने क्रिटिसाइज करा. राजेंद्र गुप्ता ने क्रिटिसाइज नहीं करा. वहां पे जो बौद्ध भिक्षु थे, जब वो कन्वर्जन कराते हैं तो वहां पे बौद्ध भिक्षु 21 किस्में देते हैं. ये परंपरा चल रही है. अगर आपको धार्मिक आस्था आपकी आई हुई तो आपने पहले क्यों नहीं क्वेश्चन करा? अच्छा, ये एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया आप लोगों ने. आपकी धार्मिक आस्था तो आपने पहले क्यों नहीं करा? ये परंपरा, ये आर्टिफिशियल जो धर्म की ठेकेदारी है, इसको छोड़िए. धर्म की ठेकेदारी छोड़िए, चलिए. अगर एक जेन्युइन बात किसी ने प्रपोजल दिया है, इसके ऊपर जो हिंदू धर्म जो तेजिंदर बग्गा, आपको दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई और आपके अलावा लक्ष्मी गणेश की बात कर रहा है. तेजिंदर बग्गा होगा. मंदिर में क्या क्रिमिनल नहीं जाते? मंदिर में, गुरुद्वारे में क्या क्रिमिनल नहीं जाते? ठीक है परविंदर जी, अब उनको बात बोलने दो. भगवान की ब्लेसिंग लेने का एक रास्ता है, उसको एक मजाक का विषय बना देना बड़ी, मैं समझता हूं कि
मैं ये मजाक के ऊपर थोड़ी देर में आऊंगी, बट लेट मिस्टर बग्गा रिस्पॉन्ड। हाँ, तेजिंदर बग्गा। कि नहीं जी, ये गणेश जी से या माँ लक्ष्मी से हमें। परविंदर जी, मेरे को बोल लेने दो आप। हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छी बात है। देखिए, ये अपने एक एमएलए को भी डिफेंड कर रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि वो भगवान राम को नहीं मानते, भगवान लक्ष्मण को नहीं मानते, विष्णु को नहीं मानते। फिर उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुप्ता, हमारे एक विधायक ने कह दिया, इनको ये नहीं पता उस विधायक का नाम राजेंद्र गुप्ता नहीं, राजेंद्र गौतम है। सोचिए आप, आम आदमी पार्टी का जो प्रवक्ता यहां पे आम आदमी पार्टी को डिफेंड करने आया है, वो आम आदमी पार्टी के विधायक का नाम नहीं जानता, वो राजेंद्र गौतम को राजेंद्र गुप्ता कह रहा है। ये आम आदमी पार्टी का हाल है। और किस तरह के उन्होंने स्तर के प्रवक्ता उन्होंने भेजे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज जो ये राजनीति गुजरात चुनाव से पहले कर रहे हैं और इनको लगता है इनको चुनाव से लाभ हो जाएगा, इनका जो हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ चुका है, इस तरीके से कुछ इनका हल होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी जब आई थी, उन्होंने कहा था हम राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए, ताहिर हुसैन जैसे लोग जिन्होंने हिंदुओं को मारा, केजरीवाल उसको डिफेंड कर रहे थे। अभी आपने बात की, एक सेकंड, वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर दैट ऑल थ्री जेंटलमैन आर प्रेजेंट हियर इन द कैपेसिटी ऑफ पॉलिटिकल एनालिस्ट, दे आर नॉट ऑथराइज्ड स्पोक्सपर्सन्स ऑफ द आम आदमी पार्टी, दैट आई वांट टू मेक वेरी वेरी क्लियर। बट दैट बीइंग सेड, आपने एक बहुत जरूरी बात बोली परविंदर सेठी जी की धर्म के विषय को, आस्था के विषय पे मजाक नहीं करना चाहिए। तो कुछ ही दिनों पहले अरविंद केजरीवाल जी खुद, जबकि वो इतने बड़े भक्त नहीं थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पे एक बयान दिया था, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूं, एक बार जल्दी से सुन लेते हैं। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी आगे बढ़ गई है, अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी, ये स्टैचू बनाने से नहीं होगी, स्कूल, सिग्नेचर, ब्रिज बनाने से देश की तरक्की होगी। दोस्तों, जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? कमाल है परविंदर जी, पहले तो अपनी नानी से भिड़ गए केजरीवाल जी राम मंदिर को लेकर के, आज लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। तब तो नानी को भी उन्होंने दो टूक सुना दी, जब नानी कह रही थी कि भाई मेरे को राम मंदिर से खुश हूं मैं। ऐसा क्या हुआ? देखिए, नहीं, उन्होंने, देखिए, एक राजनेता का काम है ह्यूमैनिटी, उसका रिलीजन होता है मानवता, वो सब धर्मों को एक आंख से देखे। तो लेकिन आप ये सोचिए, बीजेपी मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। आप गुरु गोविंद सिंह जी का भी फोटो की मांग करते, 500 साल की आप लड़ाई के बाद जीसस क्राइस्ट की भी मांग करते। अभी तो आप सर्वधर्म संभाव की बात कर रहे हैं, पर आपको चाहिए सिर्फ लक्ष्मी गणेश। क्यों? जीसस क्राइस्ट की भी फोटो की मांग कीजिए ना। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप हमारे गुरुओं का नाम मत लीजिए, हमारे गुरुओं का नाम मत लीजिए। हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। आपके है, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। हजारों रामलीला होती है, वहाँ पे दिलबाग गुटखा उसको स्पॉन्सर करता है, शर्म नहीं आती? नहीं, तो सबकी फोटो क्यों नहीं लगा रहे? दिलबाग गुटखा उसको स्पॉन्सर करता है। दिलबाग गुटखा, जितनी हजारों रामलीला होती है उसको एक गुटखा कंपनी स्पॉन्सर करती है। गुटखा कंपनी के आगे भगवान राम की फोटो लगी होती है। कहां चले जाते हैं धर्मगुरु? अरे कहां चले जाते हैं केजरीवाल जी? दीजिए ना, अगर आप दिल्ली की रामलीला की बात कर रहे हैं। ओके, मिस्टर बग्गा इज रिस्पॉन्डिंग एंड तुषार गुप्ता आल्सो वांट्स टू कम इन। नहीं, ठेकेदारी इनको माफी मांगनी होगी। रामलीला भक्तों मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। जो धर्म की ठेकेदारी बीजेपी ने ले रखी है, माफी मांगिए अभी। जो हिंदू धर्म की ठेकेदारी बीजेपी ने ले रखी है, और जो भी हिंदू है वो हिंदू नहीं है। आप अभी माफी मांगिए, आपने कहा कि रामलीला गुटखा कंपनी चलाती है। जो रामलीला भक्त चलाते हैं, भक्त चलाते हैं, रामलीला हिंदू चलाते हैं, गुटखा कंपनियां नहीं चलाती है। माफी मांगिए अभी, आप माफी मांगिए। आपने कहा कि बात तो सुन लो, मैंने क्या बोला, आपने सुना? नहीं होगी। आपने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला, गलत मत बोलो, गलत मत बोलो। मैंने ऐसा नहीं बोला। आप सरदार जी सुन लो, आपका दिमाग कहाँ है? आप सुन लो ना बात जो मैं कह रहा हूँ। ओके परविंदर जी, आई थिंक इन ट्राइंग टू डिफेंड अ really bizarre comment, you have made an even more bizarre comment.
आई थिंक इसको यहीं पर छोड़ते हैं, तुषार गुप्ता वांट्स टू कम इन। क्या बोल रहे हैं सर आप? एक तरफ तो कह रहे हैं कि किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, दूसरा आप कह रहे हैं कि रामलीला को गुटखा कंपनी चलाती है। ये ऐसे आप ऑनर करेंगे किसी के फेथ को और किसी के बिलीफ को? तुषार गुप्ता Padmaja, one final point. You know, until today, Arvind Kejriwal was a very transactional politician. He was trading free electricity and free water for votes. That's fine. He was being transactional with the voters. But today, Arvind Kejriwal has crossed a limit. He's began being transactional with even Hindu gods and goddesses, and we only hope he regains his senses very soon. You can't be transactional with your voters, you can't be transactional with the gods. That's all I have to say. Transactional? And what about the traditional definition of secularism that was being propounded so far, Abhishek Sudhir? Now asking for Hindu gods, for Hindu votes, what happened to everyone else? What happened to everyone else? What is your question? My question is, why not have pictures of all gods? Why seek only Lakshmi Ganesh? Why not? I'm not opposed to it. No, you're not opposed to it. My question is, why not seek the photos of all gods? Why just these two Hindu gods? Because other votes don't matter now. Why just these two Hindu gods? Why just these two Hindu gods? Mandir versus Masjid every day, but you never say why only Mandir, why not Masjid? No, I don't. I say only where there is a legitimate claim of either it should be made. I am questioning as a politician, why seek only Lakshmi Ganesh? Why not have representation from the Christian religion, from Islam, from Jainism, from Zoroastrianism, every religion? Look, at the end of the day, Mr. Kejriwal made this speech, right, as a Hindu. He was speaking in his personal capacity as a Hindu, and he said... He's speaking in his personal capacity as a Hindu. Every Diwali, we do a... His party defended it as a political party, not in their personal capacity. This was a demand made by a political party in their political capacity. बात तो सुनिए. बोलिए ना. बात तो सुनिए. आप इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं. अरे आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है भाई. आम आदमी पार्टी अपने मंच पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है. कोई ऐसा थोड़ी ना कि हम सब दिवाली मिलन में मिले और वहां पे ऐसे ही ऑफ द कफ कमेंट हो गया. आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी के मंच से बैठ के आम आदमी पार्टी की डिमांड की, which is a political demand by a political party for political reasons. Is Mahakal Lok political? Is Mahakal Lok political? Are you saying the building of the Ram Mandir is political then? Okay, answer that, Tejinder Bagga. अगर आप महाकाल लोक को एक religious एक्सप्रेशन की तरह करते हैं तो फिर ये भी एक रिलीजियस एक्सप्रेशन है, ये पॉलिटिकल नहीं था. तेजिंदर बग्गा. एग्जैक्टली. देखिए, ये डिपेंड करता है जो आदमी की हिस्ट्री क्या है और आदमी की मानसिकता क्या है. मैंने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल हमेशा हिंदू विरोध की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन गुजरात चुनाव से पहले उनको लगा कि अगर इसी तरीके की राजनीति करते रहे तो गुजरात में इनको एक सीट भी नहीं आने वाली. मैंने आपको 50 उदाहरण दे दिए. दिवाली पे जिस तरीके से इनको हिंदुओं ने एक्सपोज किया, दशहरे के ऊपर, छठ के ऊपर, दुर्गा पूजा के ऊपर, फिर ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाके खड़े हो गए. इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल पूछे. इन्होंने, आपको ध्यान होगा जब कश्मीर फाइल्स आई, इन्होंने कहा खड़े होकर विधानसभा के अंदर कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार की जो कहानी है वो झूठी है. ठहाके मार के ये हंसते हुए दिखाई दिए. और जब मैंने उनके घर के बाहर जाकर प्रोटेस्ट किया, उल्टा मेरे ऊपर एफआईआर करके मुझे गिरफ्तार कर दिया गया. तो इनकी पूरी राजनीति है जो हिंदू विरोध के ऊपर रही है. आपको ध्यान होगा जो हमारे देश के लिए बलिदान देने वाले आतंकवादियों को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद मोहन चंद शर्मा, उनका इन्होंने अपमान किया. आप कह रहे हैं कि आप हमेशा आपकी वो फिलॉसफी रही है, यहाँ पर चेंज ऑफ माइंड हुआ है. एनीवे, अल्टीमेटली इफ दिस इज a gamble that has been taken by the Aam Aadmi Party and its chief, the proof of the pudding will be in the eating, and the eating will happen very shortly when the results for the Himachal and Gujarat polls come out. Do people really buy that? We'll be keeping a close watch. For the time being, thanks very much all gentlemen for joining me. I have to say, when it comes to political pitches, we are in a really, really interesting time.